Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumors, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayan. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. We would like to share a special experience with you. Recently, we came to know about Ayurgrama 2.0, an event organized to spread awareness about Ayurveda. Our class representative met with the event coordinator and gathered detailed information about the event. The coordinator explained that the main objective of Ayurgrama 2.0 is to bring the ancient practices and benefits of Ayurveda to every section of society. Inspired by this information, many of our class members also became interested in the event. Then we made a profound team of 15 members to execute the event. I am Mohit Sharma, team head. I am Aradhya Sharma, publicity head of our team. Myself Gauri Shukla, documentary head. I am Kiran Yadav, cultural head of the team. Myself Prachi Kumari, finance head of the team. I Preeti Kumari, creative head of team. Myself Rishabh Kumar, I am a transport head of our team. I am Sapna Kumari, stage event head of the team. I am Shalu Patni, reporting head of the team. I am Swangil Sharvastav, survey head of the team. Myself Abhishek Sharma, supporting member of the team. Myself Kajal, I am the supporting member of the team. Myself Pranav Kumar, supporting member of the team. I am Pratibha Das, supporting member of the team. I am Rohan, supportive member of our team. We are from Shivalik Institute of Ayurveda and Research. Catch 2021. Our motto is Charaka for Change. The first challenge we faced was selecting the right village for our Ayurveda awareness camp. Our journey took us to 4 different villages: Pondha, Rampur, Dhulkot and Kolupani,
But after careful inspection, we finally selected Bhagwanpur village. Here is how it all unfolded. Ponda was our first stop. It had a good population, but the infrastructure was not suitable for our camp activities. Next, we visited Rampur. The village had decent facilities, but it was too far from our college, making daily travel difficult. Dhulkot was promising as well, but it lacked community spaces where we could gather people for workshops and sessions. Next, we visited Kolhu Pani, but the Pradhan was not cooperative enough. Then we reached Bhagwanpur village. Bhagwanpur stood out for several reasons. Firstly, it had a central community hall which was perfect for our sessions. The villagers were very welcoming and showed a keen interest in learning about Ayurveda. Additionally, the village had basic amenities, making it easier for us to set up and run our camp efficiently. With the village selected, we were ready to embark on our mission. We started the camp with the auspicious practice of Havan, for which we collected mango leaves and banana leaves from Mandir premises. We arranged Havan Samagri and prepared for the Prasadam. For Prasad, we made Panchamrit and Panjiri. Panchamrit comprises of doodh, dahi, shahad, tulsi and ghee. The combination of these 5 substances provides a balanced mixture of nutrients. It supports digestion, provides energy and has soothing and cooling effects on the body. Research suggests that the antimicrobial properties of the ingredients in Havan Samagri can reduce the concentration of airborne pathogens and pollutants, contributing to a healthier environment. It has antimicrobial properties. The smoke from the burning neem leaves, sandalwood and camphor contains compound that can inhibit the growth of harmful bacteria and viruses, which is common in Varsha Ritu. Then the combustion of natural ingredients like ghee and herbs can neutralize harmful chemicals in the air. The soothing aroma of sandalwood, tulsi and other herbs used in Havan Samagri can help reduce stress and promote mental relaxation. The inhalation of aromatic compounds like camphor and turmeric can have a positive impact on respiratory health and the Havan enhancing the body's immune responses. पावनं संक्रांति यथाद्युक्तं यज्ञः समृद्धिप्रदः स्वास्थ्यम् आयुष्यं च यथा पूर्वं प्रकल्पितम्। जैसे संक्रांति के समय हवन और यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है, वैसे ही हवन समृद्धि, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि करता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हवन तो हम ईश्वर की प्रार्थना के लिए करते ही हैं, पर इसका आयुर्वेद से क्या रिश्ता है? हवन हम इसलिए करते हैं ताकि इससे वायु की शुद्धिकरण हो, स्वास्थ्य का लाभ हो और इससे मानसिक शांति भी मिलती है हमें। आयुर्वेद जो कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में लोग क्या कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। योगा जो है आज जो है हमारे लिए एक अभिन्न अंग बन चुका है। Namaste.
The next day, we got to work making badges for the Ayurgrama 2.0 event. Each badge was crafted with care, bearing the emblem of Ayurveda and the event's logo. With our badges ready, we organized a rally to promote the event across the entire village of Bhagwanpur. We marched through the streets distributing pamphlets and explaining the benefit of Ayurveda to the villagers. ये पंच महाभूत वो एलिमेंट्स है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अभी तक क्या क्या सीखा हमने? आकाश, अग्नि और वायु और पृथ्वी सीखा, ठीक है। और दो कौन से बचे? और आकाश और जल। लोगों ने एक देखा देखी में अपना हौसला बचा सकता है। जल्दी जल्दी क्या हो सकता है? कैसे कुछ खा के हल्दी डालते हैं, अब टाइम नहीं है आंटी किसी के पास। अब तो हम कुछ चीज़ ऐसे ही खा रहे हैं, वो सब चीज़ तो ये दवाइयों से बनती है, दवाइयाँ डाली जाए। We planted a variety of trees to promote afforestation and highlighted the benefits of several medicinal plants, including amla, vibhitki, kanchnar, and many more. हम सबने ये ठाना है, आयुर्वेद को अपनाना है। इसे बताओ, तुमने कहाँ सुना था आचार्य चरक के बारे में? अपनी क्या लिखा था? हल्दी चैप्टर था। हल्दी का वर्णन अपनी पुस्तक में चरक जी ने चरक संहिता में कहा। वेरी गुड। After we finished painting the walls, it rained heavily and all our efforts washed away. Despite the setback, the team did not lose hope and started painting again, determined to bring their vision to life. फिर हमने चिंचा पानक बनाया। चिंचा पानक क्वाद कल्पना की उपकल्पना है। चिंचा का वर्णन भाव प्रकाश पूर्व खंड मिश्र प्रकरण आम्र फल वर्ग में किया गया है। वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है और चिंचा वात का शमन करती है। इसके रोग अधिकार हैं श्रम, क्लम, तृष्णा, दाह और मिचली।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चिंचा पानक का, जो कि एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है। तो बच्चों, इसका टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को? ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखा आप लोगों ने आयुर्वेद के नाम पे कैसे सामान्य जनमानुष को मूर्ख बनाया जाता है। कोई भी ऐरा गैरा वैद्य जिसके वैद्य की आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं की है, वो भी एक शिविर लगा के 400-500 दवाइयाँ रख के वो खुद को वैद्य कहते हैं। ऐसे वैद्यों के पास आप ना जाएं। चलिए हम अब आप लोगों को आयुर्वेद से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ और उनकी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद कोई विज्ञान नहीं है, वो बस ऐसे ही है, परंतु हमारे आचार्य अनुसार आयुर्वेद विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। लोगों को लगता है आयुर्वेदिक दवाइयों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयों की भी एक्सपायरी डेट होती है। लोगों को लगता है कि च्यवनप्राश सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन च्यवनप्राश एक रसायन है, वो हर उम्र के लिए एक रसायन की तरह काम करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ वो खुद जानते हैं, तो कभी भी कोई भी उन्हें खा सकता है, पर ऐसा नहीं होता। हर औषधि की एक इंसान पे उसका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो आयुर्वेदिक औषधियों का नुकसान है, साइड इफेक्ट है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का होता है। जो वैद्य टेंट लगा करके हमें पुड़ियों में दवाई देते हैं और हमें उनसे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, उन दवाइयों में स्टेरॉइड्स और बहुत हानिकारक केमिकल्स मिले रहते हैं, जिसके कारण हमें आराम तो मिल जाता है, लेकिन फिर वो बाद में हमें बहुत नुकसान करता है। अतः आपसे निवेदन है कि असली वैद्य को चुने, ना कि एक सिद्ध साधित वैद्य को चुने। विशेष सूचना आपके अपने गांव भगवानपुर में पंचायत घर में एक महिलाओं के लिए एवं शिशुओं और बच्चों के लिए निःशुल्क हेल्थ कैंप की आयोजना की गई है। फिर हमने गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में खिचड़ी एक पथ्य कल्पना बनाई। पथ्य कल्पना जो विशेष रूप से स्वास्थ्य के लाभ के लिए जाना जाता है, जैसे पाचन सुधार, संतुलित पोषण, सहजता, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण। पहला है काले भोज। काले भोज के मतलब सही समय पर भोजन। ऐसा नहीं कि जब मन कर रहा है तभी खा लिया, कभी शाम में खा लिया, कभी सुबह खा लिया।
खाने का जो टाइम है वो आपको फिक्स करना होगा सही समय पर। अगर आप सही समय पर खाना खाएंगे तो बॉडी को भी भूख जाता है कि अभी सुबह हो गई, अभी नाश्ते का टाइम है। जब आप सही सही खाएंगे तो आपको सुबह की भी भूख लगेगी, दोपहर की भी भूख लगेगी और रात की भी भूख लगेगी। ये भी आपने नोटिस किया होगा, 2 बजे भूख लगती है, शाम रात हो गया 8 बजे भूख लग रही है। तो इसलिए होता है कि सही टाइम पर खाना खाएं, काले भोजन सही समय पर सही काल पर भोजन करना चाहिए। की बात है, अब वैसे तो वो तो बात हो गई, उसको भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। उल्टी आ रही है या फिर थूक फेंकना, ये सारे जितने भी वेग हैं इन सबको आपको धारण नहीं करना है। कोई शर्म की बात नहीं, कोई अच्छी जगह देखिए साफ सफाई के साथ, ऐसा भी नहीं कि कहीं भी गंदा कर दे, एक साफ सफाई की तरह जैसे हाँ क्रमानुसार जैसा बताया गया उसका पालन करके जो भी चीज जैसी है वैसा करना है, ठीक है। जैसे कि जम्हाई है, भूख प्यास, जम्हाई में आप 4 लोग के बीच में बैठे हो और आप ऐसे उबासी लेते हो तो सामने वाला टोक देता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं, आप बीच समाज में बैठे हो, हाँ ऐसे ही। तो गुस्सा आपको धारण करना होता है, क्योंकि गुस्सा तो अच्छी बात है नहीं। अरे गुस्सा ही आता है, गुस्सा करना, बुरी बात बोलना, लालच करना सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। लालच करना, लोभ करना, गंदी बातें बोलना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे वेग ऐसे जो आपको धारण करने चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए इस पे। तो ये कहलाते हैं धारणीय वेग, जो आप खुद में धारण कर सको, ठीक है। धारण भूख लग गई देने आप वाला कंट्रोल करो, आप जिस पे कंट्रोल आंटी जी आप भी आ जाइए, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको। तब क्या करें? हाँ मैं ये बता रही हूँ कि कुछ वेग ऐसे हैं जो आपको धारण करें, धारण करने मतलब कंट्रोल करने, जैसे गुस्सा, लोभ, लालच, ये धारणीय वेग है। कुछ वेग है वो अधारणीय वेग है, आप उनको धारण नहीं कर सकते। जैसे क्या, मूत्र का वेग, पुरीश का वेग, जैसे कि आप कोई काम करने में लगे, ठीक है बाद में टॉयलेट चले जाएंगे, अभी ये वाला काम कर लेते हैं। बच्चे क्या है, ठीक है पहले खेल लेते हैं फिर बाद में चले जाएंगे, तो वो ये क्या कर रहे हैं, ये वेग को धारण कर रहे हैं। तो ये अधारणीय वेग है, आपको इन वेगों का धारण नहीं करना है। इनसे क्या होता है, इनसे बीमारियां होती हैं। ऐसी अनेक अधारणीय वेग है, जैसे कि टोटल 13 अधारणीय वेग हैं, जैसे छींक का वेग, जम्हाई का वेग, ये सारे वेग ऐसे हैं जो आपको धारण नहीं करने चाहिए। जो भी आ जाओ, बिना शर्म के आप उसको धारण करें, उसको कंट्रोल ना करें। हाँ जैसे आपको नींद आ रही है, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आप थोड़ी देर बाद सोऊंगा, नहीं वो नहीं। जैसे मान लीजिए आप दिन भर थकी हुई हो, लेकिन आप रात में आपको 8 बजे करीब नींद आ रही है, ठीक है, ये दवाई लो और ध्यान से खाना, ठीक है। अरे क्या हो गया? बारिश में भीग गई थी तो मुझे जुकाम हो गया है। अच्छा ठीक है, कम भीगो बारिश में बेटा। अबे आगे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, बारिश के मौसम में बेटा अपना ध्यान रखो।
थे तो वो लोग भूखे हैं और बीमार पड़ गए हैं। अच्छा, ख्याल रखो, बारिश बहुत हो रही है, शाम का समय है। आज तुम खेलने नहीं आई? नहीं, मेरी तबीयत खराब है। और प्रीति की भी तबीयत खराब है। रोहन भी खेलने नहीं आया आज? रोहन की भी तबीयत खराब है। लेकिन तुम भी हमारे साथ खेल रहे थे, बारिश में भीगे थे, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो प्रीति। हाँ बोलो। तबीयत खराब है, तुम्हारी भी खराब है, मोहित की भी खराब है। आवाज से लेकिन मोहित की तबीयत ठीक है। आवाज तेज करो। कुछ जादू तो नहीं? जादू है, जादू है भाई, जादू है, जादू है भाई, जादू है। ये कोई जादू नहीं, ये है व्याधि समझ। व्याधि समझ। व्याधि समझ मतलब? व्याधि समझ तो मतलब? व्याधि समझ तो मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता। बारिश में भीगने पर सभी बच्चे एक साथ खेलने के बावजूद भी सिर्फ मोहित की तबीयत इसलिए खराब नहीं हुई क्योंकि उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रोहन, शैलू, प्रीति इन सबसे ज्यादा है। अब हम ये जानते हैं आयुर्वेद में आचार्य चरक ने व्याधि क्षमत्व के लिए क्या कहा है। हम अपनी व्याधियों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा खान पान करके, रसायन का उपयोग करके, रसायन अर्थात गुगुल का उपयोग करके, आंवला का उपयोग करके, गिलोय का उपयोग करके, व्यायाम करके, आहार विहार करके, इन सब से हम अपनी व्याधियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप मोहित की तरह बनना चाहते हैं या इन सब की तरह बनना चाहते हैं? मोहित की तरह। तो मोहित की तरह बनने के लिए आप अपनी व्याधियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं और आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद अपनाएं, रोग भगाएं। आयुर्वेद अपनाएं, रोग भगाएं। आयुर्वेद अपनाएं, रोग भगाएं। धन्यवाद। एक कॉन्सेप्ट है हमारा अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ठीक है? इसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है विमान स्थान में। इसमें क्या है? तत्र खलु इमानी अष्टौ आहार विधि विशेष आयतानी प्रकृति, करण, राशि, काल, देश, उपयोग संस्था, उपयोगिता, सहयोग। तो एक एक करके मैं बताऊंगी कि प्रकृति क्या है, करण क्या है, ठीक है? तो शुरू करते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? जो उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। जैसे कुछ गुरु होता है, कुछ लघु होता है। ये शायद आप लोगों को ही पता होगा कि जो उड़द होता है वो गुरु होता है। गुरु मतलब भारी होता है, जो आप खाओ तो भारी फल लगता है। लेकिन जब भी आपको कुछ हल्का खाना हो तो आप क्या खाते हो? मूंग की खिचड़ी खाते हो। मूंग की खिचड़ी खाते हैं, तुरंत पच भी जाता है आराम से। तो वो उसकी स्वाभाविक बनाने क्या दाल मतलब हल्का है। तो ये थी प्रकृति। दूसरा है करण। करण मतलब संस्कार। जब कच्चा चावल तो नहीं खाते, तो कोई तो कारण होगा कि हम कच्चा चावल क्यों नहीं खाते और उसको पकाकर खाते। तो होता ये कि जब हम चावल को पका देते हैं, अग्नि के जब संयोग में आता है तो उसका संस्कार हो जाता है। संस्कार मतलब जो इसके पहले गुण थे उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। पहले वो भारी होता है, कच्चा चावल भारी होता है, हम बच्चों को भी कहते हैं उठा के खा लेते हैं वो, तो उनको भी रोकते कि नहीं मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो भारी होता है, इसलिए उसको अग्नि के संयोग में पका कर खाते हैं तो वो लघु हो जाता है। संस्कार की बात। फिर हम आते हैं राशि की। राशि मतलब मात्रा। जो भी हम खाना खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? चावल भी, दाल भी, सब्जियां भी, सैलेड भी। थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना? हाँ, थोड़ा खाते हैं ना। एक बार आप 8 रोटी तो नहीं खाते हो। राशि मतलब की मात्रा। राशि मतलब की मात्रा, हम कितनी मात्रा अपने प्लेट में खा रहे हैं, ये होती है राशि, ठीक है? प्रकृति हो गया। करण क्या था? संस्कार, हम जो संस्कार करके खा रहे हैं। राशि मतलब मात्रा। संयोग मतलब पता है, शब्द से ही पता चल रहा है, जोड़। तो संयोग का ये मतलब है कि कुछ आहार ऐसे हैं जिनको आप साथ में खा सकते हैं, लेकिन कुछ आहार अगर आप साथ में खाएं तो वो विष प्रदान कर देते हैं, वो विष युक्त हो जाते हैं। जैसे कि सम मात्रा में अगर हम घी और शहद खाएं, सम मात्रा मतलब 1 चम्मच घी लिया और 1 चम्मच शहद खाएं, तो वो बिल्कुल विष के समान हो जाता है। तो जब हम किसी आहार का संयोग लेते हैं, संयोग करके खाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके संयोग से उनमें उनके गुणों में बढ़ोतरी हो रही है कि वो विष पैदा कर रहे हैं या फिर कोई हानिकारक हम प्रदान कर रहे हैं हमें, ठीक है? प्रकृति हो गया, करण हो गया, राशि हो गया, संयोग हो गया। अब हम बात करते हैं देश की।
आप उत्तराखंड में रह रहे हैं। उत्तराखंड, आपको भी पता होगा, ये उत्तराखंड औषधियों की सबसे अच्छी जगह है। जब भी अगर हम औषधि बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड से ही आए, क्योंकि यहाँ की जो औषधियों की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम साउथ से लेने जाएं या फिर मेघालय या फिर कहीं और से लेने जाएं, उनकी जो सेम औषधि अगर हम 1 किलो यहाँ से लेते हैं और 1 किलो अगर हम मेघालय से लेते हैं, तो यहाँ की जो गिलोय की गुण है वो बहुत अच्छे हैं मेघालय की गुणों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देश का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब कि हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम आहार खाते हैं उसकी विधि क्या है, हम उसको कैसे खाते हैं। उपयोग संस्था में आता है आहार विधि विधान। कैसे खाते हैं हम? गर्म खाना खाना चाहिए, ना जल्दी खाना चाहिए, ना ज़्यादा धीरे खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। फिर है उपयोक्ता। उपयोक्ता कौन है? हम सब। जो कि अब इसके जगह पे नकली भी तो कोई दे सकता है, तो आपको कुछ फीवर है तो उसका असर हो या ना हो, तो ये हम च्यवनप्राश तो आप लोग खाती ही होंगे, तो उसमें ये पहले के ऋषि इसे यूज़ करते थे अपने एज को कम करने के लिए। अगर उन्हें फीवर हो गया तो उसमें भी ये इसका मार्च या अप्रैल जब गर्मियों का दिन रहता है तो इतने मोटे अंगूठे के मोटे जितना हम इसके तने लेते हैं, इसको अच्छे से छील लेते हैं और फिर बारीक बारीक काट के ओखल में कूट लेते हैं और रात भर इसको एक टब पानी में, अब गिलोय हमने मान लिया 1 kg लिया तो 4 kg पानी मिक्स करेंगे उसमें और रात भर इसे छोड़ देंगे। भगवान से बीमार कर रहे वो युद्ध में मर के चलेगा, बीमार होने के मरे। क्यों? देवलोक में ज्ञान है, आयुर्वेद है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? किसी को ज्ञान होता है, हम बांट लें, ब्रह्मा जी को बांटना होगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? सबको पता है सती माता कौन है? सती माता के पिता ने कौन है? पता है किसी को? राजा दक्ष। है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा सारा ज्ञान है आयुर्वेद का, कि क्या चिकित्सा होगी, कौन से ऐसे प्लांट है। बोलना शुरू करो। अष्टांग योग एक पुरानी योग प्रणाली है जिसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में स्थापित किया। इसमें 8 अंग शामिल हैं जो एक पूर्ण और संतुलित योग अभ्यास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। आयुर्वेद अवतरण। याद है क्या नाम था? ठीक है। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले किसके पास था? ब्रह्मा जी। वेरी गुड। उसके बाद दक्ष उसके बाद अश्विनी। अश्विनी कुमार और उसके बाद वेरी गुड। इंद्र के पास धरती पे कौन लेके आया? हमने एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसका थीम था आयुर्वेदा।
ये क्या है? अच्छा, तो आपने ये हाइट में ऐसे करा है जैसे किसी के दिल में कोई दर्द वगैरह है या कुछ आवाज़ आती है तो उसके लिए। ओके, और ये क्या है? ओके। कोई भी फल डालने से ना वो जहर बनता है, ठीक है? क्योंकि दूध कैसा है? दूध ठंडा है, दूध में रस क्या है? दूध मीठा है ना? आम कैसा है? आम खट्टा है। जब ऐसा लोग ये कहते हैं कि खट्टा था, हमने दूध पी लिया, उसमें खट्टा डाला से दूध फट रहा है। एक कॉमन समझना, जब दूध फाटा से क्या करते हैं? तुम्हें नहीं बुरा लगता है ना? तो फिर वही दूध जो बाहर से आम मिला रहे हो वो नहीं फटेगा? फटेगा ना? सारे के जितने फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सारे के सारे क्या है? सारे खट्टे हैं। और दूध क्या है? दूध मीठा है। साथ मिलाने से ना वो विरुद्ध आहार होता है। विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध आहार होता है जो भी ऐसी कोई भी चीज जो साथ में यहाँ पर फंक्शन करने का बाकायदा पूरा टेंट वगैरह लगने की बात हो गई थी, पर बारिश इतनी ज़्यादा है और आज पूरे दिन बारिश दिखाई जा रही है। आज को थोड़ा अफसोस है कि कुछ आपके गांव की जो महिलाएं हैं वो आज आंगनबाड़ी के काम से बाहर हैं, कुछ जो लोग हैं वो धरने पे हैं, हमारे प्रधान जी भी धरने पे हैं आज, तो बहुत बहुत अफसोस है उस चीज का। आराम से समझ भी आ जाए, कोई भाषा थोपने की कोशिश नहीं की होगी, पर इस सरल भाषा के अंदर जो इसका मेन महत्व क्या है कि आप तक जानकारी पहुंचे। और मेन महत्व ये है कि छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, फटाफट अस्पताल भाग जाते हैं, तो इन बच्चों ने पूरी कोशिश की होगी कि हम छोटी बीमारी नहीं बच सकते हैं। अभी तक मैं जो प्लांट्स हर्बल प्लांट्स रखे हैं, ये तो मेरा चिकित्सालय पूरा, अगर हमने 8-10 अपने औषधि साथ में लगा ली, अस्पताल हमारे पास ही है। चलने का ढंग जो था ये सबसे बेहतरीन था और यही अध्यापक का एक गुण होता है। इसको ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ अपने को ज्यादा अपने को बताने का किसका होता है, लेकिन मेरे को मालूम है कि हम सब देख रहे कितनी मेहनत की हुई है, पर असली खुशी तब होती है कि जब जिसके लिए हमने किया उससे जब हमको फीडबैक मिलती है, उसको जो भी हमने किया उसको उससे क्या ग्रहण किया, उसकी कितनी अपग्रेडेशन हुई। और मैं इस चीज़ के अत्यंत प्रसन्न हूँ कि जो आपको फीडबैक मिली है उसके लिए जोरदार तालियां। इतनी मेहनत की है, आप तो उनके दिलों में बस चुके हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, दिल और दिमाग दोनों में आपने दिमाग के लोगों की छाप छोड़ी है। उसके लिए मैडम मैं आप सबको जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मैडम को बहुत बहुत एक धन्यवाद। सबसे पहले तो शिवालिक
आयुर्वेदिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले 7 दिनों में जब सबसे ज़्यादा आए थे तो आप मुझसे मिले थे ऑफिस में, तो मुझे लगा कि शायद एक खाना पूर्ति के लिए ही ये कैंप लग रहा होगा, और होता है ऐसे ही अक्सर कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कैंप लगाया, फोटो खींची, आगे में मैनेजमेंट को भेज दिया और मैनेजमेंट को पता है आंखें बंद करके उसे ओके कर दिया। परंतु ये ऐसा वाला कैंप नहीं था, इन्होंने वास्तव में बड़ी मेहनत की है और मेहनत में पानी भी पिया है और दोबारा मेहनत की है। तो फिर वो फोटो अभी भी है कि जो 2-3 दीवारें इन्होंने बनाई, इन्होंने घर घर जाके अवेयर किया है, लोगों को कन्विंस किया है, और उसका नतीजा ये है कि जिस दिन यहाँ पे कैंप लगा था, मेडिकल कैंप, तो काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने यहाँ पे आए और अपना चेकअप कराया। छोटे बच्चे जो है, बड़े जितने भी आदमी होते हैं ये तो सुनेंगे और अनसुना कर लेते हैं, परंतु जो छोटे बच्चे होते हैं बड़ी गंभीरता से सुनते हैं बातें। मेरी छोटी बेटियां है, अभी 3.5 साल की है, तो घर जाके मुझे बोलती है कि पापा पानी जो पीना है वो बीच में पीना है, ना पहले ना बाद में। और ये बात मुझे भी बोली, परंतु मैंने अनसुना कर दिया, मतलब मेरी बेटी ने अनसुना नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके। वृक्षारोपण कार्यक्रम किए उन्होंने, उनके बारे में बताया, काफी जड़ी बूटी के बारे में बताया मुझे कि आप इस चीज को खाओगे तो ऐसे ठीक हो सकते हो। पीले के बारे में बात हुई, डिस्कस चला। एक होता है कि पेट में नाल हो जाना, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि भैया कि वो जड़ होती है, उसे अगर कोट के खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो मुझे लगा कि शायद ये ज्यादा ही हो रहा है, मैंने 2 सर्च किया तो वही बातें निकली है। फिर जो डॉक्टर जो यहाँ पे आए थे उनकी बातें और बच्चों की बातें लगभग सेम थी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, वो आपको 4 साल में प्राप्त हो गया है। तो कहीं ऐसा भी नहीं है कि मतलब यहाँ जूनियर लोग सेम सारे बराबर है। आपका धन्यवाद। और एक और चीज कहना चाहूँ कि बार-बार कॉलेज की तरफ से आप आते रहें, और जब तक आप इस कॉलेज में हो आप लोगों को कंपल्सरी ही आना पड़ेगा। धन्यवाद। आयुर्वेद का ये जो 7 दिन का कैंप लगाया है, किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? चरक जयंती। वेरी गुड। गाय चिकित्सा सर्वप्रथम किसने बताई थी? आचार्य। वेरी गुड। आचार्य चरक द्वारा कौन सी किताब की रचना की गई है? अपने अधारणीय वेद की संख्या कितनी है? किसको पता है? 13। वेरी गुड। दिन 7 थे, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक था कि हर दिन में हर घर आयुर्वेद पहुंचे। हमने पूरी कोशिश की कि आप तक आयुर्वेद को पहुंचा पाए, लेकिन अब देखते हैं कि आप तक आयुर्वेद कितना पहुंचा है। तो इस तरह भगवान खुश हुए, एक बच्ची अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही है। प्लीज वेलकम प्रिया। मेरा नाम रिया है, मैं भगवानपुर गांव में रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवानपुर में एक कैंप लगा है। सब दीदियाँ आई और हमें योगा सिखाया गया। तो आज मैं उन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और दीदी ने बहुत सारी मतलब एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ मैं कि दीदी ने हमें क्या क्या सिखाया है। तो दीदी ने पहले जब हमारा योगा होता था तो दीदी ने हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई, जैसे हमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया। तो पहले दीदी ने बताया कि हमें कभी भी जैसे दूध फटता है, दूध में नींबू डलता है तो वो फटता है, वैसे ही अगर हम खट्टे फलों को मीठे दूध के साथ मिक्स करते हैं तो वैसे ही वो फट जाता है। तो इसीलिए वो हमारे पेट के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसलिए हमें वो नहीं खाना पीना चाहिए। तो दूसरी बात, जब भी अगर आप पकौड़ी कुछ बनाते हैं तो उसका अगर तेल बच जाता है तो आप उसे सब्जी में बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए आप ये चीज़ें ना करें। और मैं दीदी और को ये कहना चाहती हूँ कि दीदी और सब गाँव में जाएँ और ऐसे ही डॉक्टर जैसे इलाज करें, सबका इलाज करें।
और दीदी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में वो आए और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच रिया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे बच्चों का, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इन लोगों ने, आप इनका जो परिश्रम है वो आपको पता नहीं चलेगा। इन्होंने कहाँ कहाँ जाके फंड कलेक्ट किया, जो भी इन्होंने खर्चा किया है दवाइयों का, या फिर जो प्लांटेशन के लिए इन्होंने प्लांट्स खरीदे हैं, या फिर जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हुई हैं, ये सारा इन बच्चों ने खुद से फंड कलेक्ट करके किया है, खुद पैसा इकट्ठा किया है ना। कहाँ कहाँ इन गए दुकानदारों के पास, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो इन लोगों की बहुत मेहनत है और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो हम इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं करा पाते। तो मैं अपने दिल से आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि हम आने वाले टाइम में भी आपके गाँव में कैंप लगाते रहेंगे, फुल कैंप। याद रखिएगा, शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नाम से उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम फिर से कैंप लगाएंगे, फिर से दवाइयाँ देंगे आपको फ्री में, ठीक है। और आयुर्वेद का इसी तरह प्रचार करते रहेंगे और आपसे भी ये अनुरोध करते हैं कि जितना आपने सीखा, जिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, आप उन लोगों को समझाओ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 7 दिन का आपका आयुर्वेद की तरफ से जो कैंप लगाया है, उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा इसमें कि लोगों में एक अवेयरनेस पहुंची है आयुर्वेद को लेके, और आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत रिलीजियसली और डेडिकेशन के साथ किया है। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आए बैठे लोगों को लगा यार शिविर लगाया है जैसे बाकी लोग लगाते हैं। आप लोगों ने ग्राउंड लेवल से मेहनत की है, लोगों को सिखाया, और हम कोशिश करेंगे कि आप हर 2 महीने में किस तरीके की एक जागरूकता अवेयरनेस को यहाँ पे लेके आएंगे। बेनिफिट लोगों को भी मिलेगा इसका और काफ़ी मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे हम लोगों ने 7 दिन का आपके गाँव में एक कैंप लगाया है, तो इसका आपका 7 दिन का अनुभव हम आपसे पूछना चाहते हैं, कैसा रहा, क्या सीखा आपने आयुर्वेद से, योगा के, कुछ भी आपने सीखा हमसे? आज से पहले योगा किया था लेकिन वो इतना डीपली नहीं गया। तो इस बार आपको सीखना है, उनकी कोई भी बीमारी होती है उसके लिए योगा से अगर किया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है, सभी को काफ़ी अच्छी लगता है। और आयुर्वेद के बारे में आपकी क्या विचार है? हमारी तो भारत की जो पुरानी परंपरा है तो आयुर्वेदिक है, उससे ही हर चीज़, मतलब देखा जाए तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद से ठीक ना। आपको पीछे आपको कुछ मिक्स होकर आयुर्वेद ऐसा है हम भूल कर पाए कैसे? अच्छा, बाकी आपकी जो ऋषि वगैरह कोई सजेशन जो आप मुझे देना चाहते हैं?
सकती है कि किसी कैंप है, ये कैंप लगते रहने चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखो एक बार आपने लगा दिया। अंकल जी, आपको आयुर्ग्राम के बारे में कैसा लगा? हम 7 दिन आपके गांव में आए, रुके, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आप हमारे गांव में आए, आयुर्वेद का प्रचार करा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हर गांव में करें जैसे आपके गांव में हुआ? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गांव में इसका प्रसार करेंगे तो। जी धन्यवाद। अंकल जी, आपके गांव में हम आयुर्ग्राम से संबंधित आए, आपके गांव में कैंप लगाए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति तो हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, इसका प्रचार जरूर होना चाहिए, हजारों वर्षों से है ये। तो क्या आपको लगता है कि आपके गांव से आसपास के बगल के जो गांव है वहाँ पे भी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए? जरूरी है, एक घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और मैंने जैसे कहा कि ये हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा है, ये सहस्र वर्षों से है, और इसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक। धन्यवाद अंकल जी। आयुर्वेद के बारे में अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगा जान के, उसके बारे में सीख के योगा। So this was the journey from day 1 to day 7. बारिश आई, मुश्किलें छाई, भगवानपुर में आयुर्वेद ने नई राहें पाई। Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.